وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانون و پارلیمانی امور کنور محمد دلشاد نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے عوام کی زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے دوررس اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں ان کو درپیش مشکلات کا فوری حل ڈھونڈنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے میں امن و امان کے قیام پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ عوام کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔ وہ یہاں کمشنر آفس میں کمشنر صاحبال ڈویژن شعیب اقبال سید اور RPO محبوب رشید کی طرف سے دی گئی بریفنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، تینوں اضلاع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز اور دوسرے متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر ساہیوال ڈویژن کے دورے کا مقصد یہاں درپیش مشکلات سے آگاہی حاصل کر کے انہیں صوبائی حکومت کی مدد سے فوری حل کرنا ہے۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے ڈویژن میں جاری ترقیاتی پروگرام بارے تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 167 منصوبوں پر کام جاری ہے، جس میں میگا منصوبہ جھال روڈ فلائی اوور، ساہیوال بائی پاس، ساہیوال سمندری روڈ، شیخ فاضل چیچاوتی روڈ اور پاک پتن ساہیوال روڈ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے دیپال پور اکاڑا سید والا روڈ کا منصوبہ حکومت کو منظوری کے لیے بھجوا دیا ہے، جس سے اکاڑا ضلع کا بھی موٹر وے سے رابطہ استوار ہو جائے گا۔ انہوں نے ساہیوال میں کارڈیک اسپتال اور چلڈرن اسپتال کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور صوبائی حکومت سے ان دو اہم منصوبوں کو اگلے سال کے ترقیاتی پروگراموں میں شامل کرنے کی درخواست کی۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے مزید بتایا کہ ساہیوال ڈویژن نے صوبے میں سب سے پہلے ای رجسٹریشن کے کام کا آغاز کیا اور اب 96% رجسٹریشن ڈیجیٹل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 14 اگست سے ای لرننگ کا بھی آغاز ہو جائے گا، جس سے سرکاری آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اجلاس میں RPO محبوب رشید نے ڈویژن میں لا اینڈ آرڈر پر تفصیلی بریفنگ دی اور عوام کو فراہم کی گئی سہولیات، خصوصاً پولیس خدمت مرکز پر شہریوں کو درپیش مسائل کے فوری حل کے بارے میں بریفنگ دی۔ بعد ازاں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کنور محمد دلشاد نے DPO آفس کا دورہ کیا اور وہاں پولیس خدمت مرکز، پولیس ویلفیئر سینٹر، IT روم اور کمپلینٹ سیل کا دورہ کیا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر DPO فیصل شہزاد نے بتایا کہ پولیس خدمت مرکز میں ایک چھت تلے 16 قسم کی مختلف سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سینٹرل جیل کا بھی دورہ کیا اور جیل میں مختلف بیرکس کا دورہ کیا۔ انہوں نے خواتین وارڈ میں ٹیبٹا کی جانب سے قائم سینٹر اور جیل کی ڈسپینسری کا بھی دورہ کیا اور وہاں اسیران کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر اہم پروگرامز کا جائزہ لیا اور بہترین صفائی ستھرائی کے انتظامات پر انتظامیہ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ آگے بڑھیں گے۔ نوشہرہ سے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تمام مسالک کے علماء اکرام عمائدین علاقہ کے ساتھ میٹنگ کریں، امن کمیٹیوں کو فعال کریں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے مؤثر کارروائیاں عمل میں لائیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود کا محرم الحرام کے حوالے سے منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب۔ پولیس لائن نوشہرہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود کے زیر صدارت محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں SP انویسٹیگیشن، STPOs، تینوں سرکل کے SHOs، تھانہ جات کے اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر نے محرم الحرام کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام اسلام کی بقا کی خاطر دی گئی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ تمام افسران اور جوانان اس میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تمام مسالک کے مابین رواداری کو فروغ دیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ انشاءاللہ نوشہرہ میں پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی محرم الحرام مذہبی جوش و جذبے اور امن و امان کے ماحول میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مؤثر کارروائیاں عمل میں لائیں۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے، تھانہ فقیر والی پولیس کے نکے تھانے دار کی بڑی کارروائیاں، SHO کی عشیرباد سے شریف شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ نکا تھانے دار SHO سے مل کر شہریوں کو پکڑوا کر رشوت وصول کرنے لگا۔ رمضان اور ادریس نامی شہریوں کو پکڑ کر لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا اور لاکھوں روپے رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کر دی۔ متاثرین پولیس تھانہ فقیر والی رمضان ولد منیر اور اویس غفار ولد غفار احمد نے میڈیا کو بیان میں کہا کہ ہارون آباد پولیس سرکل تھانہ فقیر والی میں تعینات تفتیشی افسر اسماعیل موہل کرپشن اور رشوت خوری میں ملوث ہے۔ مذکورہ تفتیشی کو SHO فقیر والی فراز بٹو کی مکمل عشیرباد حاصل ہے۔ اسماعیل موہل نے چند کانسٹیبلان کے ہمراہ انہیں 19 والے موڑ سے بنا کسی جرم اور خطا کے گرفتار کیا اور تھانے لے جا کر بند کر دیا۔
थाना फकीरवाली में मौजूद SHO फराज भट्टू और इस्माइल मोहल ने बारी बारी रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाते और पुलिस से मुकाबले में मारने की धमकियां देते रहे। बाद अज़ां मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका की मुदाखलत पर 3 चेक और मुबल्लिग 23 लाख रुपए बगैर रिश्वत वसूल करके छोड़ा। ज़राए के मुताबिक इस्माइल मोहल और फराज भट्टू पहले भी इस तरह मुख्तलिफ शहरियों से धोंस और धांधली से रिश्वत वसूल करने में मुलविस हैं, जबकि पिछले दिनों इस्माइल मोहल ने एक छापे के दौरान मुलजिमों के घर से खाने पीने के सामान समेत घर की सारी जमा पूंजी तक लूट ली थी। SHO सब इंस्पेक्टर फराज भट्टू के खिलाफ थाना सिटी हारूनाबाद में मुकदमा नंबर 552/22 ज़ेर दफ़ा 324 और 155 दर्ज है, जिसमें जाली पुलिस मुकाबले में मजदूरों को फायर मारने का जिक्र है। मुतासरीन समेत अवामी समाजी हलकों ने अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील की है और फराज भट्टू, इस्माइल मोहल और मुलविस दीगर मुलाजिमीन को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। मैं कर रहा तू बेफिक्र है, तो मैं आ लेना मंगल मैं बहुत बड़ा बंदोबस्त कर लेना। मैं अवैस गुफार 27/6/2023 ਨੂੰ ASI ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 19 ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ SHO ਫਰਾਜ਼ ਭੱਟੂ ਫਕੀਰਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 3 ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਮਜ਼ਾਨ 27/6/2023 ਨੂੰ 19 ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ASI ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ SHO ਫਰਾਜ਼ ਭੱਟੂ ASI ਇਸਮਾਈਲ ਮੋਲ ਤੇ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ 3 ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की जाए। भावलनगर से आपको बताते चले, थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरगना खातून मंशियात फरोश कोसर उर्फ कोसरी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 5 किलो चर्च बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगना कोसर भत्ताखोरी ब्लैकमेलिंग समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस निकली। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा की हिदायत पर SHO थाना सदर राव मोहम्मद अली ने मुखबर की इतला पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खातून मंशियात फरोश समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमान के कब्जा से 5 किलो चर्च बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोश खातून कोसर उर्फ कोसरी के खिलाफ इससे कबल भी मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमा अरसद राज से अपने गिरोह के हमरा मंशियात फरोशी करती थी और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर रूपोश हो जाती थी। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने चर्च समेत धर लिया। मुलजिमान में कोसर उर्फ कोसरी, मोहम्मद आबिद और दीगर शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। इस मौका पर SHO थाना सदर राव मोहम्मद अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि DPO भावलनगर की हिदायत पर मंशियात फरोशों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों को कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाऊँगा। हारूनाबाद से आपको बताते चले, हारूनाबाद की हदूद में शादी की तकरीब में नाजायज़ असलिया की नुमाइश और हवाई फायरिंग का मामला। DPO सैयद अली रज़ा का नोटिस। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हारूनाबाद के थाना सिटी की हदूद में शादी की तकरीब में असलिया की नुमाइश और हवाई फायरिंग के मामले पर DPO भावलनगर सैयद मोहम्मद अली रज़ा ने नोटिस ले लिया। थाना सिटी पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम वकास को गिरफ्तार कर लिया। दीगर नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी मुलजिम के कब्जा से नाजायज़ असलहा भी बरामद कर लिया। DPO भावलनगर सैयद अली रज़ा का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मुआशरे में अमन व अमान का ख्याल रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। यूनान कश्ती हादसा केस डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विर्क की हिदायत पर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलरों को मंडी भावदीन और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलरों ने मुतअद्दिद शहरियों को बैरून मुल्क यूरोप का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे। मुलजिमान ने 4 मुतासरा शहरियों से फीकस 25 लाख रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद मुदस्सर, सैयद अवैस शाह
औरंगजेब और जहांजेब शामिल। इंसानी स्मगलर पाकिस्तान से लीबिया और लीबिया से यूनान बजरिया कश्ती भिजवाने में मुलविस थे। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई मुतासरीन के लवाहिकीन की निशानदही पर की गई। चारों मुतासरा शहरी यूनान हादसे में जाँ बहक हो गए थे। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जा चुका है। FIA गुजरात सर्कल ने अब तक 23 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर मसूद की जेर निगरानी टीम में मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ जारी रखे हैं। टीमें मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रही हैं। छापामार टीम में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लवाहिकीन के साथ मुसलसल राब्ते में है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिमान को कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रेलवे फैजबाग कॉलोनी में मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सफियान सरफराज डोगर जाए हादसा पर पहुंच गए। मरहूम रेलवे में बतौर वाटरमैन मुलाजिम था। हादसा शदीद बारिश के बायस पेश आया। मरहूमीन की नमाज जनाजा जामिया नईमिया में अदा कर दी गई। DS रेलवे मोहम्मद सफियान सरफराज डोगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। DS रेलवे ने मरहूमीन की मगफरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और DME मोहम्मद इमरान समेत अफसरान और अमले की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। हादसे पर DS रेलवे ने दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। मुश्किल की घड़ी में अल्लाह मरहूम की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम के बच्चों से हर मुमकिन ताउन करेंगे। DS रेलवे मोहम्मद सफियान सरफराज डोगर की ब्रीफिंग। भावलपुर से आपको बताते चले, अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजा हामिदपुर कलां की रिहायशी शकीला बीबी वल्द सईद अहमद कौम वार ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं मोहम्मद सईद बुलंद पे हामिदपुर कलां तो और मैं 8 महीने तो बाद है मेरी बच्ची नाल ज़्यादती हुई है और अमल होया है जरा था और वो तो बाद जरा था मेरे नाल सुलह की गई ने। मैं को कहने से नाल सुलह करने से ते को आप असा अपनी नौ बड़ा गिनते थे तो कोई दी बच्ची दे देसू। मैं कि ठीक है सुलह कराते 1.5 साल का मैं को निकाह पीछे तक करवा के ने 1.5 साल के निकाह के बाद मैं बच्ची उन्हें कुछ जरा दे दी है निकाह नाल और 3 महीने के अंदर अंदर उनको तनफीज दावा करवाते और उनको तलाक दिवा छोड़ते जरा था। वो तो बाद जरा था परेशान वड्डे नाल बच्चा चवात जाए करवा जेड़े किते ने पता का नहीं केड़े किते ने और मेरी बच्ची को तलाक देते और उठे कर रखे पूरा महीना आगे से मैं मेरे को इंसाफ वजीर आला पंजाब को आपको मेरे को इंसाफ मिला मुझे। अब्दुल्ला ने पुत्र ने आसिफ मेरे नाल जियाद की थी मैं उन्हें अम्मी को आके मैं कि तोरा पुत्र मेरे नाल जियाद की करना पे को समझा कि ना उन्हें आके तू समझा सा समझने से तो कोई गाल का ना करे से बोला तो 12 दफा मेरे नाल जले जियाद की थी मैं उन्हें अबू ने आके मैं कि तोरा पुत्र मेरे नाल जियाद की करना पे उन्हें आके तू समझने कुछ नहीं आता तो आपको बोला मैं को बोला उन्हें मेरे नाल जियाद की थी मैं को अमल थी है बोला 8-9 महीने बाद मेरा अबू आए जरा तो मैं कल पूछा हाँ अम्मा कि ना मैं कि आसिफ दा बोला मेरा प्यू को आके ना मेरा प्यू 4 बंदे जो इकट्ठे करते हैं उन्हें आके भाई ऐसा राजी ना गिनने से तो ऐसा अपनी नौ बढ़ने से मेरे प्यू को 1.5 साल का निकाह 75 गिन कितने मेरा निकाह मेरा प्यू मेरा 1.5 साल 75 जल्द मैं कोई तो गिनते बहावलपुर बांधते मैं को आगे मेरा घर वाला जल्दी था नूठा मारना था देखो कत्ल करना देखो फैर मरना देखो ये करना मैं उठा के नूठा मरवा के थे मेरा ऑपरेशन करवाते मेरा बाल जिटे किते सी मेरा बाल जमवाते डेढ़ सी वेट दी थी मैं लेडी कल पूछे मैं कि मेरा बाल की था वहाँ की बीबी डॉक्टर को देते 3 लाख गेन की थे खा पी गए मेरे को पता नहीं तेरा मैं बोला अपने घर वाले कल पूछे मैं कि मेरा बाल की था वहाँ के भाई मर गए मैं कि मतलब मोया आया मेरे को दिखावा मेरा घर वाला आके से भाई डॉक्टर आके से एक वैसा बाल नहीं दिखे ना मरीज है पर छोड़ वैसे मरीज मार वैसे ऐसा को बाल नहीं दिखे रहे मैं नशा की हालत थे मैं बीमार है मेरे को पता नहीं मेरा बाल किधर करना मैं लेडी कल पूछे मैं कि मेरा बाल किधर वहाँ के भाई तेरा घर वाला वेट देते सी बाल। जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम 2023 के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने, फ़िरका वारियत और मसल की मुनाफरत पर काबू पाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नौशहरा कबीर अफरीदी की ज़ेर सदारत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख और अंजुमन ताजरान कैंट बाज़ार का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग
आसफ अली एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा, अब्दुल कयूम खटक DSP हेड क्वार्टर अहले सुन्नत वल जमात जिला नौशहरा, अहले तशी मुशरान, सदर अंजुमन ताजरान नौशहरा कैंट और ज़िला पुलिस के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में मुतफिका फैसला किया गया कि तमाम मकातबे फ़िक्र के मुशरान मुहर्रम उल हराम 2023 के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने और पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के साथ भरपूर ताउन करेंगे। सराय आलमगीर से नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव चुआ राजगान की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात राजा अरसलान के वालिद मोहतरम और राजा मजहर, राजा अजहर, राजा फैसल स्पेन के भाईजान और साबिक काउंसलर राजा नाज़म हुसैन के मामू जान और राजा रफ़ाइल, राजा शाहिद, राजा जाहिद, राजा वाहिद, राजा ज़ियारत, राजा शौकत, राजा नजावत के भांजे राजा अख्तर मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए खत्म चहलम की महफिल उनकी रिहाइश का नवाही गांव चुआ राजगान में मुनक्किद हुई। खत्म चहलम की महफिल में बानी फारूक फाउंडेशन करियाला, राजा नासर फारूक करियाला, राजा शब्बीर करियाला, राजा जैन, साबिक वाइस चेयरमैन राजा ज़ियाउल्लाह, राजा नवीद, राजा बिलाल अकरम, राजा उस्मान अनवर, मलिक काशिफ सत्तार, राजा अमजद, राजा नाज़म, राजा बिलाल, राजा नदीम, राजा वलीद के अलावा मुमताज़ सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में मरहूम के खत्म चहलम की महफिल में शिरकत की। वसीम बारी मेमोरियल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 142 नोएल चौधरी ताहिर महमूद और राना खलील अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी आमद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब वसीम बारी मेमोरियल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 87 सिक्सार और चरी खोखरा के दरमियान खेला गया। मैच रात 11 बजे शुरू हुआ जिसमें चरी खोखरा ने कामयाबी हासिल की। पूरे टूर्नामेंट में 85 से ज़्यादा टीमों ने शिरकत की जिसमें चौधरी ताहिर महमूद, राना खलील, सेठ आसफ जुल्फकार और इमरान फजल खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चौधरी ताहिर महमूद और राना खलील अहमद की जानिब से अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए गए। चौधरी ताहिर महमूद ने कहा, विलेज लेवल पर ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइंद बात है जिससे गांव के टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। राना खलील अहमद ने टूर्नामेंट इंतजामिया को कामयाब इवेंट करवाने पर मुबारकबाद पेश की।